ایک بازار جہاں ایک طرف امانت، دیانت اور سچائی کا نور جگمگا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حسد، لالچ اور نفرت کی آگ دلوں کو جلا رہی تھی۔ جب انسان کے دل میں کھوٹ چن لے تو وہ دوسروں کی خوشی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ شہر کے قدیم اور ہنگامہ خیز بازار کی تنگ گلیوں میں جہاں ہر لمحہ شور و غل کا سما رہتا تھا، وہاں دو کپڑے کی دکانیں بالکل آمنے سامنے واقع تھیں۔ یہ دکانیں محض کاروبار کا مرکز نہیں، بلکہ دو متضاد نظریات کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ ایک طرف احسن تھا، جس کا چہرہ ہمیشہ ایک خاص قسم کے اطمینان اور سکون سے دمکتا رہتا تھا۔ احسن کا اصول تجارت منفرد تھا۔ وہ گاہک کو کپڑے کی خوبی بتانے سے پہلے اس کا عیب واضح کرتا اور قیمت کا ذکر سب سے آخر میں کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ رزق میں برکت سچائی سے آتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ دوسری طرف زبیر کی دکان تھی، جس کی آنکھیں ہر وقت گھڑی کی سوئیوں کی طرح احسن کی دکان پر آنے والے گاہکوں کا حساب رکھتی تھیں۔ زبیر ایک مکار تاجر تھا، جو گاہک کو دام میں لانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس کے نزدیک کاروبار ایک جنگ تھی، جہاں جیت صرف اسی کی ہوتی ہے جو زیادہ منافع کما سکے۔ وہ اکثر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، سچ بول کر صرف عبادت ہوتی ہے، کاروبار نہیں۔ یہاں پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑی بہت ہیرا پھیری تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بازار کی فضا بدلنے لگی۔ زبیر کی دکان پر گاہکوں کا رش تو ہوتا، لیکن وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آتے، کیونکہ وہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کرتے۔ اس کے برعکس احسن کی دکان پر گاہکوں کا اعتماد ایک مضبوط دیوار بن چکا تھا۔ لوگ دور دور سے صرف اس لیے آتے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے ملنے والا سودا بے داغ ہوگا۔ احسن کا سکون بڑھتا گیا، جبکہ زبیر کی بے چینی اسے اندر ہی اندر کھانے لگی۔ آخرکار سچائی کی برکت نے یہ ثابت کر دیا کہ دیانت داری صرف آخرت کا زاد راہ نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کی واحد مستند ضمانت ہے۔ زبیر کو یہ سمجھ آ گئی کہ جھوٹ سے گھر تو چل سکتا ہے، لیکن عزت اور ساکھ صرف سچ سے بنتی ہے۔ شہر کے قدیم بازار میں جب سورج کی پہلی کرن ڈھلتی اور احسن کی دکان پر گاہکوں کا تانتا بن جاتا، تو سامنے بیٹھے زبیر کے دل میں حسد کی گرہیں مزید گہری ہو جاتی۔ اسے یہ منظر ایک ناقابل فہم پہیلی لگتا تھا۔ زبیر گھنٹوں اپنی خالی دکان میں بیٹھا احسن کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ احسن کا چمکتا ہوا چہرہ اور گاہکوں کا یہ ہجوم محض اتفاق نہیں ہے۔ زبیر اکثر سوچتا کہ شاید احسن کوئی جادو ٹونا کرتا ہے، یا پھر اس کے پاس کوئی قدیم گپت خزانہ ہے جو اسے نقصان کے خوف سے آزاد رکھتا ہے، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں کوئی عیب بتا کر سودا کیسے بیچ سکتا ہے۔ ایک تپتی دوپہر جب بازار میں حبس کا راج تھا اور زبیر کے ماتھے پر پسینے کے ساتھ ساتھ شکست کی لکیریں نمایاں تھیں، اس نے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں آواز لگائی، احسن بھائی، آخر یہ کیسی سوداگری ہے؟ اتنا سچ بولو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ یہاں تو جھوٹ بول کر بھی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، آپ تو نقائص کی فہرست پہلے کھول دیتے ہیں۔ زبیر کی آنکھوں میں تلخی اور لہجے میں تضحیک کا عنصر صاف جھلک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ احسن اس کی سادگی پر شرمندہ کرے۔ احسن نے اپنے چہرے پر وہی دائمی اطمینان سجاتے ہوئے نہایت تحمل سے جواب دیا، زبیر بھائی، میں گاہک کو نہیں، اس کے رب کو جواب دے ہوں۔ رزق کا ضامن وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نے مزید کہا کہ جب نیت صاف ہو تو برکت خود بخود راستے بنا لیتی ہے۔ احسن کا یہ سادہ سا جواب زبیر کے سینے میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ احسن کی کامیابی کسی جادو میں نہیں، بلکہ اس غیر متزلزل یقین میں ہے جسے زبیر نے بہت پہلے کہیں کھو دیا تھا۔ ایک بوڑھا کسان جس کی آنکھوں میں بیٹی کی شادی کے خواب اور ہاتھوں میں عمر بھر کی جمع پونجی تھی، احسن کی دکان سے کپڑا خرید کر رخصت ہوا۔ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے وہ اپنی پیسوں سے بھری پوٹلی وہیں کاؤنٹر پر بھول گیا۔ سامنے بیٹھے زبیر کی عقابی نظروں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس کے دل میں شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا کہ یہی وہ موقع ہے جب احسن کی ساکھ کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے۔ زبیر نے سوچا کہ اگر یہ پوٹلی غائب ہو جائے تو لوگ احسن کی امانت داری پر تھوکیں گے اور اسے چور سمجھیں گے۔ ابھی زبیر اپنے اس مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی منصوبہ بندی ہی کر رہا تھا کہ اچانک احسن دکان سے باہر لپکا۔ تپتی دھوپ اور جلتی سڑک کی پرواہ کیے بغیر وہ دیوانہ وار اس کسان کے پیچھے دوڑا۔ بازار کے ہجوم کو چیرتے ہوئے آخرکار اس نے ہانپتے ہوئے بوڑھے کسان کو جا لیا۔
और अमानत उसके हवाले कर दी। किसान की आंखों में तशक्कुर के आंसू देखकर एहसन को जो दिली सुकून मिला, वो जुबैर की हसद भरी आंखों के लिए एक ताजियाना था। जुबैर ये देखकर दंग रह गया कि जिस रिस्क को वो छीनने का सोच रहा था, एहसन ने उसे ठुकराकर इंसानियत और सच्चाई का एक नया बाब रकम कर दिया है। जुबैर के दिल में लगी हसद की आग अब इंतकाम के शोलों में बदल चुकी थी। एहसन की अमानतदारी को दागदार करने के लिए उसने एक इंतहाई गंदी चाल चली। जुबैर ने मोहल्ले के चंद आवारा लड़कों को भारी रकम देकर पूरे बाजार में ये अफवाह फैला दी कि एहसन का सस्ता कपड़ा दरअसल चोरी का माल है और वो रात की तारीकी में स्मगलिंग का धंधा करता है। ये जहरीला प्रोपोगेंडा बिजली की तरह फैल गया। चंद ही दिनों में ग्राहकों के चेहरों पर एतमाद की जगह शुकूक ने ले ली और वो एहसन की दुकान की तरफ हकारत भरी नजरों से देखने लगे। एहसन की फरोख्त लम्हों में आधी रह गई और बाजार के शोर में उसके खिलाफ सरगोशियां बढ़ गईं। मगर इस कठिन वक्त में भी एहसन के माथे पर शिकन तक ना आई। उसने ना जुबैर से झगड़ा किया और ना ही सफाइयां दी। उसने अपना मुसल्ला थामे रखा और रब के हुजूर सरबसजूद होकर सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रखा। इसी दौरान शहर के सबसे बड़े यतीम खाने के लिए सैकड़ों यतीम बच्चों के लिबास का एक बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार करना था। यतीम खाने का मुंतजिम हाजी साहब अपनी उसूल पसंदी और खरे मिजाज के हवाले से मशहूर थे। जब एहसन के खिलाफ चोरी और स्मगलिंग की अफवाहें उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने सच्चाई को परखने का फैसला किया। वो आम सा भेस बदलकर एक आम गाहक की सूरत एहसन की दुकान पर आए। हाजी साहब ने जानबूझकर बहुत महंगे कपड़े का इंतखाब किया और सौदा तय होने पर अदायगी के वक्त बड़ी होशियारी से नकली नोटों की एक गड्डी एहसन की तरफ बढ़ा दी। सामने बैठा जुबैर ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज एहसन इस लालच में फंस जाएगा और उसकी रही सही साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। जुबैर को यकीन था कि ग्राहकों की कमी के शिकार एहसन के लिए ये बड़ी रकम ठुकराना नामुमकिन होगा। मगर एहसन ने नोट पकड़ते ही फौरन पहचान लिए। उसने बड़े अदब से वो नोट वापस करते हुए कहा, बाबा जी, शायद आपको धोखा हुआ है। ये पैसे असली नहीं है। मैं आपको कपड़ा तो दे सकता हूँ, मगर ये नोट लेकर अपने रिस्क को नापाक नहीं कर सकता। हाजी साहब एहसन का ये ज़र्फ और दियानत देखकर शशतर रह गए। एहसन ने नोटों की गड्डी पर निगाह डालते ही निहायत नरमी से सर झुका लिया और हाजी साहब से मुखातिब होकर कहा, बाबा जी, शायद आपको धोखा हुआ है। ये नोट असली नहीं है। आप इन्हें फौरन अपनी जेब में रख लें। कहीं और जगह ये पेश करने से आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। एहसन के लहजे में ना गुस्सा था और ना ही कोई मलामत, बल्कि सिर्फ एक बूढ़े इंसान की खैरख्वाही थी। ये सुनते ही यतीम खाने के मुंतजिम की आंखों में सताइश की चमक लहराई। उन्होंने फौरन अपना असली तारुफ कराया और जज्बाती होकर कहा, बेटा, पूरे बाजार ने तुम्हारे खिलाफ झूठ की गर्द उड़ाई, मगर तुम्हारी इस दयानत और बेलौस सच्चाई ने साबित कर दिया कि तुम वाकई अल्लाह वाले हो। उन्होंने यतीमों के लिबास का वो अजीमुशान ऑर्डर एहसन की झोली में डाल दिया, जिसकी तमन्ना पूरा बाजार कर रहा था। सच्चाई की जीत ने हसद के स्याह बादलों को एक लम्हे में छांट कर रख दिया। जुबैर की हसद अब एक ऐसे नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी जिसने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। एहसन को मिलने वाली कामयाबी और यतीम खाने के बड़े ऑर्डर ने जुबैर को दीवानगी की हद तक पहुंचा दिया था। उसे अब अपनी दुकान के मुनाफे से ज्यादा एहसन की बर्बादी में दिलचस्पी थी। एक सियाह रात जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था और बाजार की तंग गलियों में मौत जैसी खामोशी तारी थी, जुबैर अपने नापाक इरादों के साथ घर से निकला। उसके हाथ में मट्टी के तेल का कैन था और दिल में नफरत की सुलगती आग। वो दबे कदमों एहसन के गोदाम के पीछे पहुंचा, जहां लाखों रुपए का कीमती कपड़ा मौजूद था। जुबैर ने कांपते हाथों से गोदाम की लकड़ी की दीवारों और दरवाजों पर मट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। वो तसव्वुर कर रहा था कि सुबह जब एहसन अपनी राख होती दुकान देखेगा तो उसका वो गुरूर और सुकून कैसे खाक में मिलेगा। लेकिन तकदीर अपना फैसला सुना चुकी थी। जैसे ही जुबैर ने माचिस की तीली सुलगाई, अचानक कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने मंजर बदल कर रख दिया। नागहां हवा का रुख पूरी शिद्दत से बदला और एक तेज झोंके ने आग की उस पहली चिंगारी को हवा में उछाल दिया। वो चिंगारी एहसन के गोदाम के बजाय खुद जुबैर के तिल से तरबतर कपड़ों पर जा गिरी। चश्मे ज़दन में जुबैर का अपना बदन शोलों की लपेट में आ गया। खौफजदा होकर वो अपनी ही दुकान की तरफ भागा, जहां तेल की बोतलें पहले ही गिर चुकी थीं।
देखते ही देखते आग ने जुबैर की अपनी दुकान को घेरे में ले लिया। वो दुकान जिसे उसने झूठ और मक्र से सजाया था, अब उसके अपने हाथों लगाई गई आग का ईंधन बन रही थी। हसद का जो गड्ढा उसने एहसन के लिए खोदा था, वो खुद उसकी गहराइयों में गिर चुका था। जब बाजार में आग आग का शोर मचा तो सबसे पहले पहुंचने वाला शख्स एहसन था। शोलों की तपश इतनी शदीद थी कि लोग अपनी जानें बचाने के लिए पीछे हट रहे थे, मगर एहसन ने जरा बराबर भी देर ना की। उसने जुबैर की तरफ से पहुंचाई गई अजियतों को भुलाकर बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाना शुरू कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बगैर एहसन धुएं के बादलों में घुस गया और जुबैर के कीमती थान निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने लगा। जब आग बुझी तो अगरचे जुबैर की दुकान का कुछ हिस्सा जल चुका था, मगर एहसन की हिम्मत और बरवक्त जद्दोजहद की बदौलत जुबैर की उम्र भर की जमा पूंजी और साख मुकम्मल तबाही से बच गई। जुबैर जो तमाशाई बना अपनी बर्बादी देख रहा था, एहसन की इस बेलौस हमदर्दी को देखकर शर्मिंदगी के समंदर में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो मिटाना चाहता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोहसिन निकला। जुबैर की अना के तमाम बुर्ज जमीन बोस हो चुके थे। वो बाजार के बीचों बीच खाक पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसकी हिचकियां उसके अंदरूनी कर्ब और पिछतावे की अक्कासी कर रही थीं। उसने लरसते हाथों से सबके सामने हाथ जोड़े और पुकार उठा, लोगों, मैं उसे बर्बाद करने निकला था और उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। ऐ अल्लाह, मैं कितना अंधा था कि तेरे उस नेक बंदे से लड़ रहा था जिसके दिल में सिर्फ खैर ही खैर है। उसने भरे मजमे में अपनी तमाम साजिशों और फैलाई गई अफवाहों का एतराफ़ कर लिया। बाजार वाले हैरान परेशान खड़े थे कि एक हासिद का पत्थर दिल इतनी जल्दी कैसे पिघल गया। दरअसल एहसन के बेलौस अमल ने वो जादू कर दिखाया था जो 1000 तकरीरें ना कर सकीं। जुबैर की तौबा ने यह साबित कर दिया कि बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि सिर्फ खैर और आला ज़र्फी से ही हमेशा के लिए शिकस्त दी जा सकती है। एहसन ने जुबैर को गले लगाया और कहा, भाई, हसद की आग दुकान नहीं, ईमान जलाती है। उस दिन के बाद जुबैर बदल गया। उसने अपनी दुकान का नाम अल अमीन रखा और एहसन के नक्शे कदम पर चलने लगा। अल्लाह ने दोनों के कारोबार में ऐसी बरकत डाली कि आज भी उस बाजार में सच्चाई की खुशबू आती है। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जो उसके भरोसे पर ईमानदारी अख्तियार करता है, कायनात की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, और ईमानदारी वो बीज है जिसका फल अल्लाह खुद अपने हाथ से देता है।